Hello students, how are you? Fine. So today we want to discuss problems of 1 mark question. So now in these problems what I will do, I will read the statement and we will discuss the solutions, the answers, and this problem will be given in the description. So what you should do, you first try to solve all the problems by yourself, and after that you see the solutions and you see this video to understand the concepts. Now the first problem is, explain why it is difficult to open a door by pushing or pulling it near the hinge. So when you are applying force near the hinge, that means you are taking it like this. You know, torque is R F sine of theta, and now even if angle is 90 degree, so you see that if value of R will be less, then the torque produced will be less. So naturally, if torque will be less, that means rotational motion will be less, so it will be difficult to open the door. So you can write this answer like this. Since the door rotates about the hinge, so the distance of point of application of force R is small when door is pushed near the hinge. Due to this small torque acts on the door, which is not enough to rotate the door. Now the second question is, does moment of inertia of a rigid body changes with the speed of rotation? Explain. No. Value of moment of inertia does not depend upon the speed of rotation. कहीं भी नहीं आता, किसी प्रॉब्लम में आप देख लो. तो इसलिए 1 मार्क में आपने इतना ही देना है कि भाई नो moment of inertia does not depend upon speed of rotation. Now question number 3 is, if a body is rotating, is it necessarily being acted upon by an external torque? तो इस प्रॉब्लम में ये पूछा गया है कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो क्या इसका मीनिंग ये 100% है कि उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट कर ही रही होगी. तो इसमें आंसर क्या आएगा? नो. क्योंकि याद है बेटे, आप लीनियर मोशन में भी कहते हो कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, it doesn't mean the body remains at rest. It may happen that body is moving with constant velocity. तो यहाँ पर भी even if body is rotating with constant angular velocity, then no external torque will be acting on it. But उसके अंदर rotational motion तो होगी ना. तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? No torque is required for producing angular acceleration. If a body rotates with constant angular velocity, then no external torque acts on it. ठीक हो गया? Now the next question is, which physical quantity is represented by moment of linear momentum? Moment of linear momentum means angular momentum. तो इसमें सिंपली यही पूछा था कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो आवर आंसर विल बी एंगुलर मोमेंटम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, equal torques are applied on a cylinder and sphere. Both have same mass and radius. Which will acquire greater speed? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि यू नो दैट सबसे पहले हम इसमें रेशो ले लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ सिलेंडर. दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है. सो अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर about its diameter is 2/5 mr square. Moment of inertia of cylinder about its axis is half of mr square. mr square cancel हो गया, so it is 2/5 into 2/1, that is 4/5. अब उसके बाद ये कहा गया है कि same torque is acting on the two.
Now you know that torque is equal to I alpha. That means if we are saying that same torque is acting, it means I into alpha is constant. So now it means that I of sphere to that of cylinder, this ratio must be equal to angular acceleration of cylinder to that of sphere. क्योंकि बेटा जब दो का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, it means one is inversely proportional to other. Now this thing will become 4/5 यहाँ से. So that means आपके पास किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगी? स्फीयर की. एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर क्या होगी? इट विल बी, आप इधर जाओगे, इट विल बी 5/4 टाइम्स दैट ऑफ द सिलेंडर. है ना? ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, ये इधर चला गया और आपके पास ये इधर आ गया, तो 5 अल्फा सिलेंडर इज 4. सो दैट मीन्स एक्सेलरेशन, ये पूछा गया था किसकी ज़्यादा होगी, तो एक्सेलरेशन अगर स्फीयर की ज़्यादा है तो ऑब्वियसली विच विल एक्वायर मोर एंगुलर वेलोसिटी, दैट विल बी दिस स्फीयर. बिकॉज ओमेगा क्या है बेटा? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. So when you are taking both are starting, so omega is equal to 0 plus alpha t. That means omega is directly proportional to alpha. So more the value of alpha, then more will be the value of angular velocity. Now the next question number 7 is, what is the net torque acting on a rod? पहले इसको रब कर लें. सो मतलब देखो बेटा कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और इसमें हमने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लाना. जो कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमने उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करना है. अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि ये एक रॉड है. दिस इज द रॉड. इस रॉड की ये लेंथ दी है 2 मीटर्स. ये पॉइंट O दिया है और ये बताया कि दिस इज 200 न्यूटन फोर्स जो यूं एक्ट कर रही है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल. तो अब देखिए क्या प्रॉब्लम दी है. व्हाट इज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रॉड कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट O. इस रॉड ने रोटेट इसके अबाउट करना है. दैट मीन्स रॉड विल गो लाइक दिस. ठीक है, लेकिन रोटेशन जो है पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट O, लेकिन फोर्स कहाँ लगी है? यहाँ पर. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल रिजॉल्व दिस फोर्स F अलोंग टू कंपोनेंट. तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा? F cos ऑफ 30 डिग्री और इस तरफ बेटा F sin ऑफ 30 डिग्री. नाउ यू सी कि if you are taking this direction of application of force, this is axis of rotation, point of rotation. तो ये तो आपके पास along the line आ गई. ये तो रेडियल कंपोनेंट बन गया. इसमें एंगल कितना बन गया? 0 डिग्री. सो ये जो फोर्स है इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द टॉर्क. ठीक है ना? तो टॉर्क में कंट्रीब्यूशन किसकी होगी? इस कंपोनेंट की, बिकॉज इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर. तो टॉर्क क्या बनेगा? F sin of 30 degree into R. F force is 200, sin 30 degrees 1/2 and R is this length of the rod. So now the torque will be 200 Newton meter. So this will be your answer. Clear हुआ कि नहीं? Now the next 8th question is, so मतलब इसमें हमेशा बेटा ध्यान से देख लो कि भाई आर किधर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है और फोर्स कहाँ पर अप्लाई हो रही है. क्या उनमें एंगल कितना बन रहा है? अगर एंगल 0 डिग्री है तो टॉर्क 0 हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, अ स्फेरिकल बॉडी इज रोलिंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस. सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस और इस सरफेस के ऊपर ये स्फेरिकल बॉडी है जो कि रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, सच दैट सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास, इट मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट्स A and B on the body? A and B on the body.
अब अगर आपको याद हो तो बेटा ये क्या पॉइंट बना है, ये आपके पास बना है रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग. दैट मीन्स इन दिस केस body is rotating about center of mass and center of mass is moving with this velocity of 2 meter per second. तो हमने क्या डिस्कस किया था कि at this point of contact velocity of center of mass and the velocity of along the tangent along periphery, they are in opposite direction. So the resultant velocity at this point of contact will always be 0. और यहाँ पर both are in the same direction, तो total क्या हो जाता है 2v. So it will be 2 into 2, that is 4 meter per second. तो 1 mark में जैसे है तो you can directly apply कि here at point A velocity will be 0 and at point B velocity will be 2 times the velocity of center of mass. और आप उसमें simply अगर आपके mind में clarity होनी चाहिए कि at point of contact this velocity of center of mass and tangentially they are in opposite direction, equal in magnitude and opposite in direction, whereas here both are acting in the same direction, इसलिए ये 2 times हो जाता है. Now next, ninth question is, which component of force does not contribute to the torque? तो आपने जब हमने डिटेल में डिस्कस किया था when I see कि this is our position, तो याद है हमने कहा था कि if you are taking the force like this, तो हमने इसका एक कंपोनेंट इधर ले लिया था, है ना, और एक कंपोनेंट जो है अगर ये आपने फोर्स लिया है तो इधर आ गया तो कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ये, क्योंकि ये अलोंग द लाइन आ जाएगा. तो हमेशा याद रखिए रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट फॉर द टॉर्क. ये डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था मैंने. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन ए प्लैनेट comes near to sun in an elliptical orbit, what will be change in its linear velocity? This is very interesting question. इस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है कि एक प्लैनेट है and we know that each planet is revolving around sun in an elliptical orbit. The sun is one of its focus. It's like this. This is ellipse. Now this is the major axis. So this is one of the focus. So this is the position of the sun. अब ये पूछा गया है कि when a planet comes near to the sun, then what will be change in its linear velocity? अब देखिए planet यू रिवॉल्व कर रहा है ना, मान लो कि इस डायरेक्शन में है. अब इसकी planet की पोजीशन यहाँ पर है, ठीक हो गया, तो दिस इज नियर टू द सन. अब एक पोजीशन प्लैनेट की यहाँ पर है, दिस इज फार अवे फ्रॉम द सन. तो क्वेश्चन ये है कहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, कहाँ ज़्यादा होगी, कैसे चेंज आएगी, ये हमने देखना है. तो अब हम इसमें ये ले रहे हैं कि अगर इसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है बेटा, तो टेंजेंट जो आप इसकी किसी भी मूवमेंट पे लीनियर वेलोसिटी है वो तो v ही होगी ना, और ये क्या होगा r, पोजीशन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट. अब L एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r क्रॉस v. Now r is the position vector which is joining position of sun and planet, ठीक है, और मोमेंटम लीनियर इधर होगी. सो दिस इज अलोंग द टेंजेंट, तो ये एंगल कितना है, दिस इज 90 डिग्री. So when you will take L magnitude, it will be RP sine of angle that is 90 degree. R, अब P क्या आएगा, mass of the planet into V is velocity sine 90 degree is 1. It means that angular momentum of this planet is given by mvr. ये तो हो गया. अब आप कहोगे कि ये थोड़ा पूछा है, एंगुलर मोमेंटम थोड़ी पूछी, नहीं पूछी भी, बिल्कुल सही है. अच्छा, अब अगला पॉइंट देखो कि इसके बीच में फोर्स कौन सी है. फोर्स कौन सी है, फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स विच विल बी एक्टिंग अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग द पोजीशन ऑफ सन एंड प्लैनेट. तो ये कौन सी फोर्स बनेगी, इट विल बी रेडियल फोर्स, सेंट्रल फोर्स. तो इसमें
आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ प्लैनेट एंड सन, so that means it is the central force. So what will be the torque produced by the central force, R cross F? Now you see, R भी मैंने इसी साइड पर लिया था, F भी यहीं पर है, प्लैनेट इधर ही आ रहा है, तो that means what will be this, RF sin of 0 degree, that means no torque. So इसका मीनिंग ये हुआ, अब आपने ये याद रखना है हमेशा कि no torque is produced when planet is revolving around sun. अब क्वेश्चन यही आ जाए क्यों नहीं हो रही, why not? तो आपने क्या कहना है, because gravitational force is central force, so it does not produce any torque. So when torque is 0, it means that dl by dt is 0, which means L is constant. तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि प्लैनेट इज रिवॉल्विंग राउंड सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। तो इतने से अब आपने क्या सीखा कि प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन विद इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। तो जब L कांस्टेंट है एंड मास ऑफ द प्लैनेट इज आल्सो कांस्टेंट, इट मीन्स दैट V into R is constant. तो ऑब्वियसली बेटा अगर R लेस है तो V क्या होगा, more. It means that whenever planet will come close to the sun, then its linear velocity will increase. As it will go away from the sun, its linear velocity will go on decreasing. So clear हो गया? इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हमने ले लिए। नंबर 1 क्या लिया है कि no torque is produced due to gravitational force. दूसरा, angular momentum of planet remains constant. तीसरा, linear velocity is different at different position of the planet. Near the position of planet to the sun, more will be its linear velocity. Now, next question is question number 11. सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स, कुछ देख लो। अब आप एक चीज़ देख लीजिए कि ये नहीं है कि मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आज तुम्हें कोई नया कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, नया फॉर्मूला बता रही हूँ। जो कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हम उन्हीं चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, 3 आइडेंटिकल सफियर्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन टचिंग वन अनदर। तो दैट मीन्स इट्स लाइक दिस, नॉट टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं, इट्स लाइक दिस, ठीक हो गया। इस पे यूं पड़े हैं, हर एक का मास 1 किलोग्राम है और रेडियस 10 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स ऐसे है, ठीक है। हमें पोजीशन सेंटर ऑफ मास की फाइंड आउट करनी, वेरी सिंपल। तो बेटा अगर मैं इस पॉइंट को जो स्टार्टिंग का है, इसको मैं क्या ले लूं, ओरिजिन। यहाँ पर ये मास सेंटर में मानना है ना, 1 किलोग्राम का यहाँ पर है। अब यहाँ 1 किलोग्राम का मास है, तो ये कितना डिस्टेंस बन गया, 10 + 1 10 20। यहाँ आगे मास 1 किलोग्राम का है, तो बेटे यहाँ से यहाँ तक ये 10 10 10 एंड 10 40। बस कितना सिंपल। Now what will be position of center of mass, m1 into x1, origin has 0, plus m2 into x2 plus m3 into x3, मैं सेंटीमीटर्स में ही ले रही हूँ, divided by total mass that is 3, तो it is 20 plus 40 by 3, 60 by 3, so it is 20 centimeter. So this will be the position of center of mass in this case. Now next problem is 2 particles which are initially at rest move towards each other under the action of their internal interaction.
if their speeds are v and 2v at any instant, what's the speed of center of mass? अब इसमें सिस्टम में ये कहा है कि ये दो पार्टिकल्स हैं एंड दिस टू पार्टिकल्स आर इनिशियली एट रेस्ट. ठीक हो गया? तो नेचुरली इनके बीच में इनका कहीं भी सेंटर ऑफ मास होगा. उसके बाद क्या हुआ कि these particles move towards each other due to internal interaction. That means no external force is acting. दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये इधर को v स्पीड से जा रहा है, ये इधर को 2v स्पीड से जा रहा है. अब आपसे पूछ है कि what will be the speed of center of mass? तो इसमें हमारा क्या आंसर आएगा? Center of mass will remain at rest because क्यों? Because no external force is acting on the system. बेटा सेंटर ऑफ मास तब चेंज होगा जब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर एक्ट करेगी. इंटरनल फोर्सेस की वजह से दोनों मूव करेंगे, नॉट सेंटर ऑफ मास. तो इसलिए हमारा आंसर आएगा सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बहुत ही आसान है, लेकिन ये इस तरीके से दिया है कि ये नहीं कि चीज़ें आपको बहुत सीधी सादी मिल जाएं. थोड़ा सा अगर ट्विस्ट भी हो तो हमें उसको कैसे लेना है. प्रॉब्लम इज कि आपको एक स्क्वायर दिया है. सो दिस इज द स्क्वायर. स्क्वायर की हर एक साइड जो है दैट इज एल, और हर एक कॉर्नर के ऊपर मास जो है दैट इज एम. हर कॉर्नर के ऊपर एम मास है. ए बी सी एंड डी. सो क्या दिया है कि 4 point masses each of mass m are placed at the corners of a sphere of side L. What is the moment of inertia of the system about an axis passing through A and parallel to BD? BD is this, है ना? अब इसके parallel, that means this axis is like this. So ये PQ axis है. इसके about हमें moment of inertia system की find out करनी है. ये हमारी प्रॉब्लम है. अब इसमें है तो बेटे डिस्क्रीट मासेस ही, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक के लिए क्या आएगा रिलेशन? m मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब सबसे पहले क्या करें कि आपके पास ये जो है डायगोनल AC, इसका डिस्टेंस कितना आएगा? ये बेटे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो AC विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर अंडर द रूट, पाइथागोरस थ्योरम से. सो इट इज L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर द रूट, तो इट विल बी अंडर रूट 2L. अब अगर उसके बाद ये पॉइंट आपके पास है O, तो OA क्या होगा बेटा? इट विल बी half of AC, so that means it will be half of under root 2L. AO half है ना इसका, तो it will become L by under root 2. अब देखो आपके पास moment of inertia will be I AA plus I DA प्लस ICA प्लस IBA. मतलब मैं ये लिख रही हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पॉइंट A अबाउट दिस A एक्सिस से जो पास हो रही है, देन पॉइंट D पे अबाउट दिस एक्सिस, C पे अबाउट दिस एक्सिस एंड P पे. तो अब इसमें सबसे पहले ये m मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 0. अब ये रहा पॉइंट, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं बनेगा, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? AO के बराबर आएगा. सो दैट मीन्स इट विल बी L बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर. अब C लो, C का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से क्या है? ये टोटल AC विच इज अंडर रूट 2L, अंडर रूट 2L का स्क्वायर. उसके बाद
आप ये लो तो ये भी आपके पास L/√2 आ गया। तो ये क्या बन जाएगा 0 m L²/2 m इंटू 2L², क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 आ गया, प्लस m इंटू L²/2। तो ये बन गया mL²/2 प्लस mL² 1, तो दैट मीन्स इट विल बी 3mL²। ठीक है। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या था कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम की अबाउट एक्सिस BD निकाल लेते, BD एक्सिस के अबाउट निकाल लेते। फिर वो आपके पास देखो क्या बननी थी, इस मास का आपने लेना था, वो भी 0, ये आना था, है ना, ये आना था, ये भी 0 आ जाना था, ये आना था। तो ये बनने कितना डिस्टेंस पे थे, ऐसे कर सकते थे ना। तो वो करके फिर आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का लगा लेते। सो मतलब किसी तरह से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि भाई ये मेथड मैंने बताया तो आपने उसी से करना है। यू कैन ट्राई विद एनी, उसके हिसाब से जो है आप अपना आंसर फाइंड आउट कर लोगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कि आपको मैं कुछ स्टेटमेंट दे रही हूँ और आपने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज लाई इनसाइड द बॉडी। क्या आएगा? फॉल्स। सेंटर ऑफ मास मे और मे नॉट लाई इनसाइड द बॉडी, इसलिए ये क्या होगी? फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड इज linear velocity of each particle of a rigid body is same during its rotational motion. ये भी क्या है? False. Linear velocity of each particle of rigid body is not same during its rotational motion. It's the angular velocity which remains constant. लेकिन linear velocity क्या होती है? Different होती है. Angular momentum is an axial vector. So this is ट्रू स्टेटमेंट। तो बेटा इस तरीके से मैंने यहाँ पर 14-15 क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस किए आपके साथ, जो आपको 1 मार्क में आ सकते हैं, या अगर ये टोटल प्रॉब्लम बन के मैथ आ सकते हैं तो 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो प्लीज़ आपको, जैसा मैंने शुरू में ही कहा है, कि आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आप पहले प्रॉब्लम सेट लीजिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए कि आपने जब चैप्टर थॉरो पढ़ लिया कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हो। उसके बाद आप उसके सॉल्यूशंस देखिए और वीडियो को व्यू करके प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। सो इफ़ देयर विल बी अगेन सम डिफ़िकल्टी, then you can comment in comment box. Thank you.